हेलो लावण्या, वेलकम बैक। और कैसा चल रहा है तुम्हारा? स्टडीज ठीक चल रही हैं? जी सर। तो हमारे साथ जो सेशंस हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चल रहे हैं आप, और ये लाइव इंटरेक्शंस हैं। कोई भी कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन टॉक विद मी, नो इशू। ठीक है? तो ओके देखो सर। कि लास्ट टाइम लावण्या, आई हैव गिवन यू सम आइडिया अबाउट टू थिंग्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. What were those two things we were talking about सिग्मा last इन time? पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन। ओके लवन्या, वेरी गुड आंसर गिवन बाय यू। देखो कि यहाँ पर वी ट्राइंग सम क्वेश्चंस ऑन हाइब्रिडाइजेशन एंड सिग्मा बॉन्ड स्टूडेंट्स। तो यू हैव वेल वर्स्ड विद दैट एंड यू कुड आंसर ऑल द क्वेश्चन करेक्टली। सो वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। तो यहाँ पर हमें समझ में आई कि कार्बन जो है, why it is able to form such a large number of compounds, as you will see. Carbon is टेट्रावैलेंसी। tetravalent, catenation. So these are some of the things which are important in the case of carbon. And the important point is the bond energies, bond enthalpies. So if a bond is stable, if a bond has high bond enthalpy, then it is going to be stable and will be formed. Carbon, carbon bond, carbon hydrogen bonds, carbon oxygen bonds, carbon hydrogen bonds, carbon halogen bonds have a good bond enthalpy. So they are stable. If they are not stable, they will break and dissociate and react immediately. Now here we have something very important information, Lavanya, for you, that electronegativity of different orbitals. What I am talking is electronegativity of different orbitals. देखो, why we are doing all this, let me tell you, because we are coming to organic chemistry part. And in 12th class you have haloalkanes, alcohols, aldehydes, phenols, ketones, carboxylic acids, acid derivatives, then nitrogen compounds, amines, etc. Biomolecules, polymers. The main thing is to understand, students, how a chemical reaction or an organic reaction will take place. And for that, we are going to discuss some basic concepts of organic chemistry, which I am talking about general organic chemistry. We have to know what type of polarity is there on the bonds. If carbon halogen bond is there, which is more electronegative, carbon is positive, halogen is electronegative. So what type of attacking reagents will attack this carbon, and what type of reactions will be there, and what type of major products will be formed in the reaction. For that, students, it is important to understand certain basic things. So we told you, as Lavanya, you know it so well, that I talked of sp3, I talked of sp2, and I talked of sp hybridizations in carbon. Yes or no? यस सर। Okay. Keep on interacting with me. If you have doubt, we will stop. जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है, हमें बहुत आराम से करना है, सबको समझना है. We have to understand everything. sp3, देखो, how I showed the excited state of carbon. Keep making your notes, they help you. Use lot of colored pens, red, blue, green, ऐसे colored pens you can use it. Important points you note down with colored pens, because in the exam we don't read books, we only read the self notes. The notes which will be prepared by you will be the best help. I can send you lot of notes, but what will be the use? There is the same thing as a NCERT book. You have the NCERT book, so what is the problem? They are the notes. But when you will write yourself, make your notes and mark with colored pens. We will be discussing a lot of questions, students, and we are also trying to help all those students who are going for competitions. You can share our videos with your friends, relatives, so that students can also take help during this period when so much pandemic is there and a lot of children, cannot go to schools. We cannot go to schools, so we have no choice. So the number of cases is rising. We have to be careful. We should not fall sick. That's very important. And not only here, during exam also student should not fall sick. तो एक्साइटेड स्टेट मैंने कैसे रिप्रेजेंट की थी कार्बन की? वी यू हैव एस ऑलरेडी में 1 और पी में 3।
ठीक है, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर गिवन बाय लवन्या। तो कोई बात नहीं, तुम और मैं हम बराबर एक ही लेवल पर हैं। मेरे से भी गलती हो सकती है, मुझे बता देना, मैं जहाँ गलत हूँगा यू विल टेल मी, ठीक है। तो हेल्प मी वेर एवर आई एम रॉन्ग। अब देखो यहाँ पर हम आ गए, ये एक्साइटेड स्टेट है। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1 2 3 4। तो मैक्सिमम वैलेंसी कार्बन की तुमने बोला 4 है। कोवैलेंसी, ये क्वेश्चन ही पेपर में आया, व्हाट इज द कोवैलेंसी। देखो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी पूछी गई थी सीबीएसई पेपर में, नाइट्रोजन में भी 2s और 2p होते हैं। तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी, व्हाट विल बी द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, डू यू नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द सीबीएसई। 12th के पेपर में। नाइट्रोजन की व्हाट विल बी द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, सपोजिंग समबडी आस्क यू। देखो यहाँ पे मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ, अगर नाइट्रोजन का उन्होंने कंपाउंड दिया था N2O5, क्वेश्चन था व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। देखो सीबीएसई का क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब ये क्वेश्चन आया था। सर 3 होती है उसकी। 3 नहीं होगी, मैक्सिमम देखो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का क्या होगा, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है, 7। हाँ जी सर। 1s2 2s2 एंड 2p3 हो गया 7, 11 7 हो गए इलेक्ट्रॉन। हाँ तो जी सर। फिर कैसे रिप्रेजेंट करेगी लवन्या, हाउ विल यू रिप्रेजेंट। देखो नोट्स बनाते जाओ, नोट्स लिखते रहो, सब चीजें काम की। बहुत सारे बोर्ड के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा जो बीच में ही आ जाएंगे आंसर। अब ये देखो कि 2s2 है, अब इसके पास कितने हैं 2s2p। तो देखो कि यहाँ पर ये जो क्या कर सकता है कि ये 2s वाला भी अपना लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये लोन पेयर है, ये अपना डोनेट कर सकता है लोन पेयर। देखो लोन पेयर, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड सुना तुमने, तो टोटल मिला के 4 हो सकते हैं। नाइट्रोजन की कोवलेंसी भी 4 होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ज्यादा लग रही थी क्योंकि N2O5 था कंपाउंड जो एग्जाम में दिया था उन्होंने। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े कंफ्यूज लगते हैं। नाइट्रोजन के भी 4 ही बनने, 2s और 2p होता है। नाइट्रोजन इज द एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसके पास 3d ऑर्बिटल नहीं है, कार्बन के पास 3d ऑर्बिटल नॉट अवेलेबल, यस और नो। 2s 2p 2d नहीं होता, वो जो 3s 3p 3d होता है वो फिर हायर एनर्जी का होता है, हायर एनर्जी का होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए वी नीड मोर एनर्जी स्टूडेंट, मोर एनर्जी। बात समझ में आई? हाँ जी सर। हर चीज समझनी है, बस समझना है, याद रट्टेबाजी थोड़ी कर सकते हैं, रट्टेबाजी नहीं, समझना है, हर चीज को समझना। देखो मेरे साथ जो इंटरेक्शन है वो लाइव इंटरेक्शन है, समझ। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यू नो व्हाट आई एम राइटिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। देखो 3 ऑर्बिटल्स हैं, अब इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बताओ। sp है, sp2 और sp3, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टूडेंट्स, विच हैज अ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp2 और sp3। बताओ कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यू नो कि s ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, दैट इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, यस और नो। जो s ऑर्बिटल होता है स्टूडेंट्स वो मोस्ट अट्रैक्टिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी s ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा होती है, फिर p की, फिर d की और फिर f की। ये मैंने लिख दिया ऑर्डर। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ s इज मैक्सिमम, समझ में आई? तो s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब s ऑर्बिटल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना चाहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो s ऑर्बिटल लवन्या हैज ए हायर electronegativity than p more than d। ये ऑर्बिटल्स की शेप्स व्हेन यू विल सी दे आर डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल, ये डिफ्यूज्ड होते हैं, ये जिनकी शेप्स देखोगे डंबल टाइप इस तरह से। लेकिन s ऑर्बिटल देखोगे वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव होता है, यस और नो। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर बताओ फिर किस, विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आउट ऑफ द 3? sp। रेस्ट करेक्ट आंसर। और उसके बाद sp2 और फिर sp3। वाई? बिकॉज यहाँ पर s और p में s ऑर्बिटल कितना परसेंट है, 50%। यहाँ s ऑर्बिटल कितने परसेंट है, 33.3%। व्हाट इज द s ऑर्बिटल हियर, 25%, यस और नो। देखो 1 1 एंड 1 2 तो 50% है, ये 1 और ये 2 है,
3, तो 3 में ये 1/3 है, 1/3 कितना होता है 33.3%। ये 1 है या 3 है, 3 1 + 3 4 होता है, तो ये 25%। तो मैक्सिमम एस करेक्टर किसमें है, एसपी में। हाँ जी सर। तो एसपी ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, एसपी। SP। तो इसकी दिस हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज प्रोपोर्शनल टू, दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं है। यस और नो। तो क्योंकि ये मिक्स हो गए हैं, मिक्स हो गए यहाँ पे, मिक्स हो जाते हैं जब, तो उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिखी है लवन्या ऊपर, ये हाइब्रिड हो गए ऑर्बिटल, मिक्स हो गए, मिक्स हो गए आपस में। क्यों मिक्स होते हैं, बिकॉज दे बिकम मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। देखो दुनिया में हर चीज ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। एवरीथिंग वांट्स टू बी मोर स्टेबल, एवरीथिंग वांट्स टू बी मोर कंफर्टेबल। स्टूडेंट्स, तुम्हें मौका मिलेगा तुम कंफर्टेबल लाइफ लीड करना पसंद करोगी, ना कि टेंशन में लाइफ लीड करना पसंद करो। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, जो फॉर्म होते हैं, दे वांट टू बी मोर स्टेबल, 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 सो दे आर मोर कंफर्टेबल व्हेन दे आर हाइब्रिडाइज्ड। तो इसलिए वो एनर्जी कौन देता है, जब ये एटम्स आते हैं 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के पास आएंगे, तो दे विल प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर हमने टेबल में भी शो किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। तो यहाँ पर 50% एस है, 33.3% है, और एस करेक्टर 25 है। एस करेक्टर इज डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, जैसे जैसे एस करेक्टर डिक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। बोला सही लिखा मैंने, गलत? हाँ जी सर, सही लिखा है। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ तक हमें समझ में आई स्टोरी। ये हम ऑर्गेनिक जनरल कर रहे हैं, जिसे हमें पता लगेगा रिएक्शंस कैसे होंगी और कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, हम वो सारा देखेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, देखो हर चीज में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हेन वी डिस्कस, तो स्टूडेंट्स वी नो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होती है। अगर मैंने इफ आई राइट सपोजिंग दिस कंपाउंड, मैंने ये कंपाउंड लिखा, इसमें क्या क्या है, कार्बन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो 2 टाइप के बॉन्ड्स मुझे दिख रहे हैं, CC एंड CH। तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है स्टूडेंट्स, बॉन्ड लेंथ होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। देखो अगर मैंने लिखा CH4 स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन का sp3 है और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। देखो आप sp3 कार्बन है और s ऑर्बिटल किसका है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1s1। बोलो सही है गलत, मैंने सही लिखा? हाँ जी सर। अच्छा, लेकिन अगर मैंने लवन्या ये लिख दिया, नाउ देयर इज अ डबल बॉन्ड हियर, बोलो डबल बॉन्ड दिख रहा है? हाँ जी तो सर। ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2 है। हाँ जी। कार्बन की और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल होते हैं, ये sp2 होते हैं, तो ये sp2s है, ये sp2s है। तो ये बॉन्ड, और अगर मैंने ये लिख दिया लवन्या, ये लिख दिया मैंने, अब बताओ तो कि लवन्या व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन sp3s, यार sp3s, इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाले में? sps। sps, एक्सीलेंट, बहुत इंटेलिजेंट है दिमाग तेरा, जरा जल्दबाजी नहीं करनी। देख मेरे साथ मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत सारी लड़कियां बहुत पढ़ रही है मेरे पास, तेरे को मैं वीडियो भी भेज दूंगा। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, तुम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और फिर जल्दबाजी में आंसर करते हो, और फिर वो आंसर गिवन इन ए हरी विल बी रॉन्ग। अभी बता रहा हूं तुम्हें, चाहे फिजिक्स कर लेना, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी पढ़ लेना, ठीक है। तो जब लॉकडाउन खुला होता तो मैं बैठ के तेरे साथ चाय पी रहा होता, तेरे को सारी बातें बता रहा होता। जब 1 महीने और वेट करते हैं, फिर देखते हैं अगर ये सब सिचुएशन ठीक हो जाती है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना, समझ गई? हाँ जी सर। अपना टाइम लेना है, मतलब जो दिमाग है उसको यूज करना है, तो वो बेकार हो जाएगा हमारा। मैं इतना दिमाग लगाता हूँ तुम्हारे को पढ़ाने में, तो तभी मेरा दिमाग एक्टिव रहता है। अगर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आई, मैं यूएसए में पढ़ाता था, यूएसए में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, सारे अंग्रेज हैं, तो वो बीएससी कॉलेज में पढ़ा रहा था। वो प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे स्टूडेंट बहुत कंफर्टेबल लाइफ लीड करते हैं, दे डोंट स्टडी मच, और नीड भी नहीं है। जैसे तुम कनाडा जाओगी, यूएसए हो, तो बहुत ईजी लाइफ है, वहाँ पे डिफरेंट है सिस्टम तो वो फिर माइंड खत्म हो जाता है। अब हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत हाई है, देखो यू आर इन ए वेरी कॉम्पिटिटिव वेयर
यू हैव टू थिंक बिफोर यू आंसर एनी क्वेश्चन। दिमाग का इस्तेमाल करना है, सोचना है, सोचना है, सोचते सोचते आंसर मिल जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोचना पड़ेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में सोचना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में सोचना पड़ेगा, वरना मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाऊंगा सीबीएसई में। सोचना है, वी हैव टू थिंक थिंक एंड थिंक। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना। जहां भी डाउट है रुक जाओ मेरे साथ, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पूछो, सारे क्वेश्चन पूछो, लाइव क्लास है, लाइव इंटरेक्शन, आस्क मी व्हाटएवर यू वांट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर था, ये एसपी और एस हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहां पर तुमने कहा कि सर लो इसका कलर चेंज कर देते हैं। यहां पर sp3s हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp2s हुई, sps हुई, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां पर है कार्बन की? बताओ, इसमें, इसमें या इसमें? सर एसपीएस में। हाँ, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे क्वेश्चन ही आएगा सीबीएसई में, इसलिए बता रहा हूं। देखो तो बॉन्ड लेंथ जो होती है ना, वो सबसे कम किसमें है? इसमें, इसमें या इसमें? एसपी में। हाँ, ये शॉर्टेस्ट होती है बॉन्ड लेंथ। देखो कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर होती है। तो ये शॉर्टेस्ट बॉन्ड है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। तो बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूंगा, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करेंगे लवन्या, तो बॉन्ड लेंथ में मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है स्टूडेंट्स, ये शॉर्टर है, इससे बाद डबल आता है, और सबसे बड़ा कौन सा है? कार्बन सिंगल वाला। तो इस तरह से ये बॉन्ड ऑर्डर बना है मेरा, ये शॉर्टेस्ट है, ये उससे बड़ा है। और फिर बॉन्ड लेंथ के साथ साथ हम बॉन्ड एंथैल्पी की भी बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी की। आप बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है? ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए तोड़ने के लिए? इसको, इसको या इसको? कौन सा बॉन्ड, विच बॉन्ड विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक? ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, इसके पास 3 छोटे बॉन्ड हैं, इसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। सो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, उससे कम इसकी और इसकी लीस्ट है, तीनों में से कंपेयर करो तो CH बॉन्ड विल बी ब्रेकिंग at a lower energy, this will require more energy, this will require, तो shorter the bond, the more stable the molecule। जितना बॉन्ड शॉर्टर होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यस और नो? यस सर। इसीलिए ही तुम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अब इनहेल करती हो। आर यू रेस्पायरिंग और नॉट? बताओ, रेस्पिरेशन कर रही है? हाँ जी सर। आर यू ब्रीदिंग? यस सर। तो ब्रीदिंग में क्या क्या जा रहा है बॉडी में? सर सारी गैसेस। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन तो रिएक्ट कर गई किससे? जो भी ग्लूकोज खा रही हो तुम, जो बॉडी में व्हाटएवर फूड यू आर ईटिंग, कार्बोहाइड्रेट्स जो खा रहे हैं तुम, फैट्स खा रहे हो, प्रोटीन्स खा रहे हो, तो वो अंदर जाके ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन बट नॉट रिएक्टिंग विद द नाइट्रोजन। व्हाई? क्योंकि नाइट्रोजन पता तुम्हें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, देख रही हो, ये है नाइट्रोजन लिविंग स्ट्रक्चर। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये टूटता ही नहीं, दिस इज वेरी स्टेबल, इनर्ट, ये इसीलिए इनर्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। तो नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस। व्हाई? इट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर बट इज इट अटैकिंग माय बॉडी? नो। नो। लॉट ऑफ फूड व्हिच यू बाय, दे पैक एंड फ्लश नाइट्रोजन गैस इन दैट। वो जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फ्लश कर देते हैं। व्हाई? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा वो, प्रिजर्वेटिव। तो वो इनर्ट एटमॉस्फेयर दे देता है ना, ऑक्सीडेशन को रोक देता है, ऑक्सीडेशन को रोक देता है। ऑक्सीडेशन से फूड स्पाइल हो जाता है। रैंसिडिटी का नाम सुना था तुमने, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि फूड पे ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो खराब हो जाएगा ऑक्सीजन से। तो वो नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। नाइट्रोजन गैस का, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, देख रहे हो, तो इसको, इसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट। सो दैट मींस आई कैन से दैट द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। यस और नो? हाँ जी सर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। तो कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होगी, ये क्वेश्चन पूछा था उसने नीट में, मेडिकल में पूछा था कि बताओ विच बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर, ये वाली या ये वाली? तो कार्बन हाइड्रोजन है तीनों में,
लेकिन कार्बन हाइड्रोजन जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है वो शॉर्टर है, क्योंकि यहां पर sp करेक्टर है। समझ में आई? एस जो होता है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, ओके क्योंकि सर। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट होता है। समझे? हाँ जी सर। इसकी शेप देखिए बुक में, स्फेरिकल सिमेट्रिक। समझ में आई स्टोरी? हाँ जी सर। अच्छा, ये नोट कर लिया? हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड, यू आर सच ए इंटेलिजेंट गर्ल। आई मीन आई बिलीव यू, इफ यू गेट गुड टीचर्स यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। ये मेन चीज होती है कि यू शुड बी वर्किंग विद वेरी वेरी गुड टीचर्स, गुड कोचेस। कोचेस है आजकल, कोचिंग है, कोचिंग कोचिंग है। तुम कोई स्पोर्ट्स खेलती हो? बोलो, कौन से स्पोर्ट्स में हो? आर यू पार्टिसिपेटिंग इन एनी गेम्स? विच गेम सर? स्कूल में कोई गेम पार्टिसिपेट करते हो? सर हाँ, आई प्ले बास्केटबॉल। तो फिर उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए होती है। देखो कितना प्रैक्टिस चाहिए। तुमने बास्केटबॉल की टूर्नामेंट देखी है टीवी में, कितने परफेक्ट हैं वो प्लेयर्स, देखा कितना अच्छा खेल रहे। तो वो कितने, आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं। उनको जो देखा ना, कोच जो बाहर बैठे होते हैं वो बहुत इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको। तो हर गेम के लिए कोचेस की जरूरत पड़ती है। देखो विदाउट कोचिंग वो एथलीट नहीं बन सकते, प्लेयर्स नहीं बन सकते। जिस भी एथलीट को देखोगे, जिस भी प्लेयर को देखोगे, हमारे जो भी बैडमिंटन में भी वो जो टॉप पे जा रही है, उसके साथ 2 कोचेस रहते हैं हमेशा। देखे हैं वो 2 कोचेस? हाँ जी सर। वो दोनों बाहर होते हैं। वो जब ओलंपिक्स में भी थी, देखा तुमने, वो बैठ के सारी इंस्ट्रक्शंस देखते रहते हैं पूरा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि देखो, वेर एवर यू वांट टू गो यू नीड वेरी गुड अमाउंट ऑफ कोचिंग। कोचिंग हमें नहीं मिलती थी उस टाइम, हमें कुछ नहीं पता था। नहीं, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, तो मेरे पीछे बुक्स ही बुक्स का ढेर लगा हुआ है। ये सब इंटरनेशनल लेवल की बुक्स हैं। वो इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ओलंपिक्स के टॉपर्स हैं, इस तरह के लोग हैं। वो सब उन्होंने बहुत अच्छी कोचिंग हासिल की है। हमें नहीं मिली, मुझे नहीं मिली थी। हमारे टाइम पे ये होता ही नहीं था कुछ भी। हमारे टाइम पे बुक्स भी नहीं होती थी, तो क्या कोचिंग मिलनी थी बताओ। अब मतलब स्कूल बड़े मुश्किल से मिलते थे, क्या बताएं तुम्हें। अब तो बहुत कुछ मिल रहा है। तो अब तुम्हें फायदा है, बेनिफिट है, बिकॉज यू हैव गुड टीचर्स, गुड कोचेस, स्कूल हेल्प, सो मेनी थिंग्स, पेरेंट्स क्या? हेल्प, सो मेनी थिंग्स आर सो। And even we will, at our time did not have financial resources to do all these things. पैसा ही नहीं होता था लोगों के पास, तो बहुत परेशान थे लोग। अब तो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग, तो कर रहे हैं। तो इसलिए ये हमें समझ में आ गया कि जो परसेंटेज ऑफ एस ऑर्बिटल होता है, मैंने यहाँ पर फिर लिखा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन अगर आता कि बताओ कौन सी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है, तो ये सबसे शॉर्ट है। एसपी। एसपीएच वाला सबसे शॉर्ट बॉन्ड होगा। एस ओके सर। उससे कम फिर ये है, फिर ये सबसे लंबा बॉन्ड है sp3s वाला, दिस आर लॉन्गेस्ट बॉन्ड। ओके, क्लियर? हाँ जी सर। कोई डाउट? नोट्स में आ रही है ना? तो हाँ जी सर। लिखते रहो, लिखते रहो हाथ से। जितने कलर्ड पेन्स, तू ना बहुत सारे कलर्ड पेन रख ले। अब मेरे साथ बहुत मजा आएगा, बहुत सारे कलर्ड पेन होंगे और अलग अलग कलर से तुम सारे नोट्स बनाओ। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको रेड से, ब्लू से, ग्रीन से सब नोट करो, फिर बाद में भूलेंगे नहीं। बॉन्ड लेंथ पूछ सकते हैं एग्जाम में, बॉन्ड एंथैल्पी तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होगी? ट्रिपल बॉन्ड की, उससे कम डबल बॉन्ड की, उससे कम सिंगल बॉन्ड की। इसमें देखो, वट एवर वी डिस्कस देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन इनऑर्गेनिक, इस तरह से कई जगह से आएंगे सीबीएसई में। और छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। अब एसिडिटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। अब मैं एसिडिटी पे आ गया भाई। एसिडिटी क्या होती है बोलो स्टूडेंट्स, एसिडिटी क्या होती है? तो ये तो तुमने नोट कर लिया। हाँ जी सर। अच्छा, वेरी गुड। मैं मिटा रहा हूं। अब एक रबड़ लेता हूं यहां से, क्योंकि मैं ये जो नए वाले बोर्ड है इन पर भी थोड़ा मुझे लर्न करना पड़ता है। हम सीख रहे हैं बहुत कुछ। I'm trying find some other boards also. They take charges for every board. You have to pay something. तो इस तरह से बोर्ड हम खरीद सकते हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ओके, देखो एसिडिटी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ये चीजें काम आएंगी। और इसके अंदर हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक, ये सब पढ़ने वाले, जो कि सारे क्वेश्चंस के ऊपर डिसाइड करेंगे एसिडिटी वगैरह के ऊपर। तो ये बहुत मजेदार सेशंस हैं। अब आप इस पेन ले लेते हैं, चलो हो गया। तो ठीक है,
ओके, तो वापस आ गए लेवेना। अब देखो कि एसिडिटी, मैं कह रहा था कि एसिडिटी होती है, देखो एसिडिटी की बात कर रहे हैं। अब बताओ कि व्हेन आई से इट इज एन एसिड, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? यू हैव रेड लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी ऑफ एसिड्स 11th में। लॉरी ब्रोंस्टेड ने क्या बोला? एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर, यस और नो? एसिड क्या होता है? वो कह रहा है एसिड प्रोटॉन डोनर होता है। बोलो सही है या गलत है? हाँ जी सर। तो जो चीज H दे देगी वो एसिड है। तो हम अगर कंपेयर करना चाहते हैं, वो कह रहा है एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका पेपर में। देखो आपने ये कहा लवन्या कि हमारे पास ये है सी, देखो हम कंपाउंड, आई एम राइटिंग द कंपाउंड स्टूडेंट्स। ये क्या है मेरे, इसका क्या नाम है? मैंने आई एम राइटिंग दिस एंड आई एम राइटिंग स्टूडेंट्स दिस, ठीक है। यहां पर हमने क्या देखा है कि sp3s वाले हैं, दिस इज sp2s वाले हैं, और यहां पर ये जो बॉन्ड दिखा रहे हैं ये sps वाले, यस और नो? हाँ जी सर। अब ये क्वेश्चन है कि ये हाइड्रोजन क्या एसिडिक है या ये एसिडिक है या ये एसिडिक है? क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक करैक्टर शो करेंगी या नहीं करेंगी? एसिड क्या होता है? जो H प्लस दे दे, मतलब बाहर H प्लस आ गया ये टूट के, तो ये क्या बन गया? एसिड। अब बताओ इन तीनों में से तुम्हें कौन सा लग रहा है कि जो मोस्ट एसिडिक है? दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन पेपर्स। अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर में बहुत बार आता है। बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? एसिड कौन H प्लस जल्दी दे देगा? क्या H प्लस यहां से जल्दी आएगा, यहां से जल्दी आएगा, या यहां से बाहर आएगा? लास्ट वाले से आएगा जल्दी। लास्ट में आएगा। वेरी गुड एंड इंटेलिजेंट आंसर। इसका रीजन भी बता दो फिर तुम मुझे, क्यों आएगा? दिस इज द मोस्ट एसिडिक एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन्स होती हैं स्टूडेंट्स, दे बिकम एसिडिक। व्हाई? बिकॉज दिस इज sp, दिस हैज मोर s करैक्टर। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसकी? इस कार्बन की। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। when it will attract the electron towards itself, तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगी स्टूडेंट्स, because this pair of electron is attracted by the carbon because it is more electronegative, right or wrong? तो ये more electronegative है। हाँ जी सर। तो ये वाला कार्बन जो है हमारा, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला स्टूडेंट, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा? वो H प्लस बन के बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए अगर हम इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, सोडियम क्या होता है? मेटल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। मेटल कौन होते हैं लवन्या? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। तो ये क्या बन जाएगा? C-Na+। इसके बाद नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, सोडियम एसिटिलेट बन गया। और फर्दर भी कर सकता हूं, सोडियम के साथ अगर रिएक्शन करूं तो ये कंपाउंड बन सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हाइड्रोजन्स जो हैं ये एसिडिक हैं, ये हाइड्रोजन्स एसिडिक हैं। Why they are acidic? Because this carbon is sp hybridized and the electronegativity of this carbon is highest. It attracts the electron strongly towards itself, hence facilitates the removal of the dissociation of the proton. Hence it is more acidic than this, and this is the least acidic. This has no acidity almost, in fact. तो यहाँ पर हमने बताया एसिडिटी जो होती है स्टूडेंट्स, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 11th क्लास में यू मस्ट हैव रेड समथिंग कॉल्ड Ka। के का नाम सुना था? चैप्टर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ जी सर। तो इसमें हमने क्या निकाला था? के की वैल्यू निकाली थी। तो इफ के इज लार्ज देन इट इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड। बोलो यस और नो? और अनदर वी यूज इज पीके। पीके क्या होता है लवन्या? माइनस लॉग ऑफ के, ठीक है। पीएच देखा था ना, पीएच माइनस लॉग ऑफ H प्लस। हाँ जी।
तो बताओ कि अगर pKa बड़ा है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड भी। उल्टा बता दिया। अच्छा। अरे माइनस लॉग हो गया है। हाँ अच्छा, हाँ जी हाँ जी। मुझे पता था तुम इस ट्रैप में गिरोगी। ये सभी यह क्वेश्चन में वो पूछ लेता है कि पीके देखो, इफ पीके इज लार्ज देन इट इज अ वीकर एसिड। तो जरूरी नहीं है पेपर में के की वैल्यू देंगे, वो तो मैं पी के ए की वैल्यू भी दे कैन गिव यू इन द पेपर। तो हो सकता है अगर पी के स्मॉल है तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, पीएच कम है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यस और नो? हाँ जी सर। अरे जिसकी पीएच 2 है वो स्ट्रॉन्ग है या जिसकी पीएच 6 है वो स्ट्रॉन्ग है, बताओ? pH 2। तो पीएच 2 जिसकी पीके लेस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके सर। तो यहाँ पर हमने बता दिया एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके स्टूडेंट्स, एंड दिस एसिडिटी डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर द एसिडिटी, यस और नो? हाँ जी सर। समझ में आई ये स्टोरी क्यों बताई गई? ये सब स्टोरी है। यहां तक कोई एनी डिफिकल्टी और एनी डाउट? नहीं सर। अच्छा, वेरी गुड सर के लार्ज होगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना? हाँ, के लार्ज स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन पीके अगर होगा तो वो माइनस लॉग ऑफ के होता, ओके सर। तो वो क्या होता है? वो वीक वो एसिड। वीक एसिड हो जाएगा। जैसे कि H प्लस जब लार्ज है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच अगर लार्ज है तो वो वीक एसिड, मतलब ये पीएच माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है। फॉर्मूला याद आ गया? हाँ जी सर। ये माइनस लॉग लेते हैं ना, मैथमेटिकल है वो, फिर माइनस लॉग ले लिया इसलिए वो उल्टा हो गया। समझ आई? हाँ जी सर। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, वेरी गुड। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर अभी तक हमने क्या स्टोरी बताई, ये मेरे साथ जो लेक्चर होते हैं वो स्टोरीज होती हैं, स्टोरी सुनते जाओ बस, कहानी सुनते जाओ, कॉपी पेन में नोट्स बनाते जाओ बस, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं उनको रेड पेन से मार्क करते जाओ। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इन्फ्लुएंसेस ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी स्टूडेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। sp हाइब्रिड कंटेन्स मोर s कैरेक्टर, बोलो यही बताया था हमने, and hence are closer to the nucleus, s orbital is closer to the nucleus, ठीक है, and forms shorter bonds and stronger bonds। देखो जो बॉन्ड शॉर्ट होता है स्टूडेंट्स, जो बॉन्ड्स शॉर्टर होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, समझ गए? हाँ जी सर। तो ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको ब्रेक करना ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। What is bond enthalpy? Energy required to dissociate the bond per mole। तो ये हमने 11th क्लास में पढ़े थे। तो ये इसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी ज्यादा होगी, मोर होगी। इसकी जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी मोर होगी, ज्यादा होगी। तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ना मुश्किल है, तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन पे हमने बताया। तो द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन। तो आपने ये मुझे बताया लवन्या कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की वो हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है sp2 से, और sp2 इज मोर देन sp3, राइट और रॉन्ग? हाँ जी सर। तो यहाँ पे 50% s कैरेक्टर है, यहाँ 33.3 है, और यहाँ पे है 20। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है स्टूडेंट्स, दिस विल बी रिफ्लेक्टेड यहाँ पे इन सेवरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या स्टडी करेंगे बताओ, क्या व्हाट यू स्टडी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड? एक तो प्रेपरेशन और फिर उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दो ही चीजें पढ़ते हो। हाँ जी सर। बोलो समझ में आई स्टोरी? हाँ जी सर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी तुम पढ़ोगी, चाहे अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, क्या करोगे? वो कहेंगे पहले तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताओ सर, फिर आप बोलोगे सर इनकी प्रॉपर्टीज बताओ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर या सॉल्युबिलिटी इन ए सॉल्वेंट स्टूडेंट्स। और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो भी रिएक्शन आप बताओगे, वही रिएक्शन करनी है, इन्होंने रिएक्ट करना है सर, किन किन रिएजेंट से ये रिएक्ट करेंगे।
तो किस टाइप की रिएक्शन होंगी वो सारी हम देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, एडिशन, इस तरह के सब रिएक्शन हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये सब हम स्टडी करेंगे। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी रिलेटेड हैं, दे आर गोइंग टू बी रिलेटेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि मैंने ये बताया कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच जो है ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गई, एसिडिक हो गई, तो ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर गया, तो तुम्हारे को क्या बन रहा था, माइनस और ये प्लस। लेकिन CH4 को सोडियम के साथ किया तो कुछ भी नहीं हुआ, ये नहीं रिएक्ट किया, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुई क्योंकि ये एसिडिक नहीं है, तो ये बन गया। तो ये हमने आपको जो बताया इस समझ में आ गया यहाँ पर। अच्छा आगे चलते हैं। देखो अब क्या करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाउ टू रिप्रेजेंट ए मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, यस और नो। मतलब आप हाउ टू ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, 3 मेथड आपने पढ़े थे, कौन कौन से, कंप्लीट, कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। What I'm trying to say that we can represent the compounds by 3 methods students। कौन कौन से, एक तो कंप्लीट फॉर्म होती है, एक कंडेंस्ड, और थर्ड बॉन्ड लाइन। तो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस, बिकॉज अगर कंपाउंड बहुत बड़ा है, सर्टेन कंपाउंड्स आर वेरी बिग, उनमें बहुत ज्यादा कार्बन्स हैं, तो पूरा मैं पेज भरूंगा क्या लिखने में, इससे अच्छा मैं बॉन्ड लाइन बना दूंगा, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको शो कर दूंगा, शॉर्ट फॉर्म में शो कर दूंगा। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा हूँ C5H12, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज एन एल्केन, इसका व्हाट इज द जनरल फॉर्म, CnH2n+2, तुम करेक्ट आंसर बता दिया मेरे को, पेंटेन। अब इसका कंप्लीट फॉर्म है तो मुझे सारे लिखने पड़ेंगे। हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 1 2 3 1 2 3 4 5 कार्बन। अब कार्बन वैलेंसी 4 मुझे सेटिस्फाई करनी है स्टूडेंट्स, कितनी, 4 एवरी टाइम, तो बाकी रेस्ट विल बी हाइड्रोजन्स। तो यहाँ 1 2 3 4 हो गया, 1 2 है तो आई एम पुटिंग 2 हाइड्रोजन स्टूडेंट, 1 2 है तो आई एम पुटिंग 2 हाइड्रोजन स्टूडेंट, 1 2 है तो आई एम पुटिंग 2 हाइड्रोजन्स, 1 है तो मैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, बोलो सही है, ये कंप्लीट फॉर्म है। अब कंडेंस्ड फॉर्म लिखनी है इसकी, तो देखो ये रिपीट हो रहा है, CH2 कितने बार, 3 टाइम्स, कितनी बार हो रहा है, 3 टाइम्स, तो फिर तुमने ऐसे कह दिया CH3 CH2 3 CH3, ठीक है। तो मैंने कंडेंस कर दिया, इन कंडेंस मैंने, आई एम नॉट शोइंग एनी बॉन्ड्स, क्या मैं बॉन्ड दिखा रहा हूं, नहीं, कहीं भी नहीं दिखा रहा, ये कंप्लीट फॉर्म है, ये कंडेंस्ड फॉर्म है। अब बॉन्ड लाइन मैंने बनानी है, बॉन्ड लाइन में मैं कहता हूं ऐसे लाइनें ड्रा करता हूं, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये बॉन्ड लाइन है, बोलो राइट और रॉन्ग। सॉरी तो 4 नहीं है, कितने हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 ही तो हैं। हाँ जी सर, ठीक है, अच्छा चेक कर लो। तो जो टर्मिनल कार्बन होते हैं दे आर ऑलवेज CH3। इसमें क्या होते हैं, ये टर्मिनल वाले होते हैं, देखो ये टर्मिनल जो होता है, इसमें अगर मैंने ऐसे ड्रा कर दिया तो ये टर्मिनल जो पॉइंट होता है, टर्मिनल वाला जो होता है, ये CH3 होता है हमेशा, समझ में आई, ये टर्मिनल CH3 होता है स्टूडेंट्स हमेशा। जहां पे भी मैंने ब्रेक दिखाया वो कार्बन होता है स्टूडेंट, ये कार्बन है, दिस इज कार्बन, और कार्बन के साथ फिर मैंने शो नहीं किया कुछ भी बॉन्ड और हाइड्रोजन्स, तो हमें खुद लगानी पड़ती हैं। इफ आई एम नॉट शोइंग, इट इज द टर्मिनल विल बी CH3, रेस्ट विल बी कार्बन एंड हाइड्रोजन्स हैव नॉट बीन शोन स्टूडेंट्स, वी बिलीव। इफ आई राइट लाइक दिस, तो ये क्या है, CH3। अगर मैंने एक कंपाउंड ऐसे लिख दिया तो बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस देन, मैंने ये लिख दिया, तो इसका व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड,
ये CH3 हो गया, CH3 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 और ये कार्बन, तो ये क्या बना फिर, ये CH3 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 CH3, यस और नो? तो ये इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। टर्मिनल जो होते हैं दे आर CH3 ग्रुप्स, कार्बन की वैलेंसी 4, आई हैव टू बैलेंस इट स्टूडेंट। तो ये क्या बन गया, 1 2 3, इसका क्या नाम होगा, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस, 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल स्टूडेंट्स। आगे कितना है, प्रोपेन। बोलो सही लिखा मैंने, गलत? सही लिखा है सर। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि वी कैन शो द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय 3 मेथड स्टूडेंट्स। व्हेन the molecule becomes very big, we try to use bond line representation students। तो हम ये कर सकते हैं, so we can use bond line structure representation where atoms are not shown and we show zigzag lines। the only atoms written are oxygen, chlorine, nitrogen। terminals denote CH3 group student। तो अगर मैंने कोई भी चीज ऐसे लिखी है, देखो मैंने ऐसा लिखा है और मैंने ऐसे CH3 तो हम लिखते ही नहीं, OH है और ये Cl है, जैसे ये एटम्स मुझे शो करने पड़ते हैं, आई हैव टू शो दीज। अब मान लो जैसे 3 मिथाइल ऑक्टेन है, ये इसमें क्या है, ये दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन। तो ये कंपाउंड क्या जो हमने शो किया स्टूडेंट, CH3 CH2 CH2 OH CH3 है, ये वाला कंपाउंड मैंने यहाँ पे शो किया। तो इसका क्या नाम बना, 1 2 3 4। तो व्हाट विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये क्या बन गया, 4 कार्बन है, रूट कितना है, रूट कितना है, 4 कार्बन, फंक्शनल ग्रुप OH, तो ये क्या बन गया, ब्यूटान 2O। ठीक है, इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ये है, bond line representation of this is this, longest carbon chain, lowest number given to the functional group students। these are the rules for naming the organic compounds। और यहाँ पर ये वाला कंपाउंड क्या दिख रहा है फिर हमें, इसमें क्या आ रहा है, CH3, दिस इज CH2 और ये CH हो गया, ये दिस इज माई Cl, ये CH हो गया, ये COH है, ये CH2 है स्टूडेंट्स और ये है CH3। दिस इज द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कंपाउंड स्टूडेंट्स। ये क्या बन गया, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस, इसका IUPAC नेम क्या बना, What is the IUPAC name of the students, ये क्या बन गया, 4 क्लोरो 4 क्लोरो, हाउ मेनी हेक्सान, हाउ मच 3 ऑल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 3 मिथाइल ऑक्टेन को रिप्रेजेंट करना है हमने, किस फॉर्म्स में करेंगे, 3 मिथाइल ऑक्टेन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाना है किसका, 3 मिथाइल ऑक्टेन्स। कितने कार्बन है ऑक्टेन में, हाउ मेनी कार्बन, 8। तो अगर मैं इसको करूं 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6, अब ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो एक और कर दिया, 8 हो गए, 8 कार्बन हो गए। अब वह 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, तो इसको कैसे शो करूंगा, ये लो बस, ये हो गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन किसका, 3 मिथाइल ऑक्टेन। बोलो एम आई राइट और रॉन्ग, यस सर। ठीक है, ये भी समझ में आया।
अब ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं. साइक्लिक कंपाउंड्स, हाउ वी रिप्रेजेंट साइक्लिक कंपाउंड? स्टूडेंट देखो ये साइक्लिक कंपाउंड्स है, रिंग वाले, देयर आर रिंग्स इन देम. तो ये 3 कार्बन है, इनके आगे क्या लगा देते हैं? साइक्लो. तो ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, और व्हाट इज दिस? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. तो साइक्लिक कंपाउंड्स को हम भी ऐसे शो कर सकते हैं. बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशंस हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूलाज हैं. these are the bond line formulas of the cyclic compound students. तो हम शो कर सकते हैं. अगर मेरे पास है साइक्लोहेक्सेन, तो व्हाट विल बी द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन? ये है हमारा 6 कार्बन रिंग है, ये 6 कार्बन रिंग है स्टूडेंट्स. इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं. तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, इसमें हाइड्रोजन लगी हुई है कार्बन के साथ, तो वैलेंसी 4 आई हैव टू बैलेंस. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट ए कंडेंस्ड फार्मूला आल्सो देयर बॉन्ड लाइन फार्मूला. तो अब इनके कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखने हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हमें, तो आपकी स्क्रीन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया. क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलेगा, उसके बाद मैं करता हूँ. वी हैव टू शो द कंडेंस्ड एज वेल एज द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स. अब इसमें क्या है, देखो ये CH2 है, 1 2, ये तो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं. OH CH2 है, कितनी बार? 1 2 3 टाइम्स हो गया. यहाँ पर CH3 है, और लास्ट में CH, ये भी CH3, ये भी CH3. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 ट्वाइस स्टूडेंट्स. तो ये तो इसका कंडेंस्ड फॉर्म आ गया. दिस आर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ दिस. बॉन्ड लाइन में वी हैव टू सी हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड. लॉन्गेस्ट चेन जो है हमारी स्टूडेंट्स वो कितनी है? अगर इसका मैं फार्मूला लिखूं, ये है OH CH2 CH2 CH2, this is my CH students. CH3 CH3 CH3. तो लॉन्गेस्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं. तो मेरे पास कितना है? 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और ये 6 कार्बन. 6 कार्बन. 5 कार्बन पे CH3 है, 4 पे CH3 है, यहाँ पर OH है. बोलो ये सही है या गलत है? सही है सर. बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ठीक है. हाँ जी सर. ओके, करेक्ट. नाउ वी हैव टू शो द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स. इसमें क्या है? ये कार्बन है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास? ये CN को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये ट्रिपल बॉन्ड N है, ट्रिपल बॉन्ड N है, ये कार्बन है यहाँ पर, और ऊपर OH स्टूडेंट्स. तो दिस बिकम द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स. और कंडेंस्ड फॉर्म लिखनी है, इसको ऐसे लिख देते हैं. चलो, ये क्या था? OH CH CN ट्वाइस. तो ये इसकी कंडेंस्ड फॉर्म है, OH CN 2 बार है. तो ये बॉन्ड लाइन और कंडेंस्ड फॉर्म हम लिख सकते हैं फार्मूलोस की. बाई देयर आर ओनली 3 वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूल्स. तो ये एग्जाम में कुछ भी आ सकता है. समटाइम्स दे कैन गिव बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. The molecules which are longer, we try to give bond line representations.
तो वी शुड नो ऑल द थ्री। ज्यादातर बॉन्ड लाइन भी शो करते हैं आजकल, तो हमें वो आने चाहिए फॉर्मूले। यहां तक समझ में आया? जी सर। ओके, आगे चलते हैं। देखो वो कह रहा है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऑन द स्क्रीन वी हैव ए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एंड द क्वेश्चन गिव्स ओनली 1 मिनट टू द स्टूडेंट्स बिफोर आई सॉल्व इट। आपको मिलेगा 1 मिनट, आप कर लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे, हाउ टू आंसर सच क्वेश्चंस इन द एग्जाम स्टूडेंट्स। वी हैव टू शो all carbons and hydrogens, all the carbons and hydrogen students in these compounds. That means we are showing the complete form of these questions. So if I come to a part students, what it means, तो यहाँ पर क्या है, ये 6 membered ring है, this is a 6 membered cyclic ring students. This is a carbon, this is a carbon, this is a carbon. Now the only thing is to balance the valency of carbon. How much? How much valency of carbon? 4. हाँ जी। तो फिर we will put, यहाँ पर हमारा मिस्टेक हुआ है, दिस इज कार्बन। अब कार्बन वैलेंसी 4 करनी है सब जगह, देखो यहाँ से स्टार्ट कर दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हायर 1 2 3, तो फिर एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, 1 2 3, देयर इज अ 1 हाइड्रोजन हियर। इफ इट इज 1, हाउ मेनी हाइड्रोजन स्टूडेंट्स? 1 2 3, 1 2 3, तो ये बन गया कंप्लीट फॉर्म। तो वी कैन कंप्लीट देयर फॉर्म स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बी पर आ गए, इसमें तो बहुत आसान है। हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑक्टेन है, तो हमारे पास हम दिखा सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 4 लगाने हैं, कार्बन वैलेंसी 4, bonds of hydrogen not shown in the bond line, तो हमने 4 लगा दिए, तो ये बन गया। अब ये आ गया कंपाउंड, तो ये दिस इज अ ट्रिपल बॉन्ड हियर स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, फिर सी है, तो फिर एच होगा, ये कार्बन है, तो इसके साथ में क्या लगाया, कार्बन, और यहाँ पर कार्बन और ओ एच, और ये कार्बन। सो इसमें कितना लगने हैं हाइड्रोजन, हो गया 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 हो गया। तो लास्ट वन क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये क्या है, डी। इसका क्या, कैसे बनाएंगे कंप्लीट फॉर्म ऑफ द डी स्टूडेंट्स? कार्बन 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 कार्बन, तो बॉन्ड्स लगा दो, ये CH3 हो गया, CH3 हो गया, CH3 CH3। कार्बन वैलेंसी कैसे, 1 2 3 है, तो 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन। तो लाइक दिस वी कैन रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल्स इन 3 वेज स्टूडेंट्स। कौन कौन से? कंप्लीट फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म एंड बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा है, वंस वी हैव ए गुड प्रैक्टिस वी कैन इजीली शो द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स। अगर मैंने ये शो किया, व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल, व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल,
देखो ये बॉन्ड लाइन है, व्हाट विल बी दीज मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिख दिया, ये क्या है, मैंने ऐसे लिख दिया कंपाउंड। अब आइडेंटिफाई करने हैं व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये क्या कंपाउंड बने हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से कोई भी कंपाउंड हम लिख सकते हैं। ऐसे मैंने दे दिए पेपर में, तो ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये व्हाट इज दिस, CH3 CHOH CH3, ये दिस इज एन अल्कोहल। ये क्या है, दिस इज CH3O CH3, दिस इज एन ईथर, ये ईथर है, दिस इज एन ईथर। ये क्या है, ये भी ईथर है। ये क्या बना है, CH3O CH2, ये CH2 CH2 CH3, ये ईथर थी, ये वाला फार्मूला ईथर था। ये क्या है, कीटोन है, तो क्या बना ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो इस तरह से rather than writing this we can show the bond line representations, ये शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं बहुत सारे कंपाउंड्स में, हम इस तरह से शो करते हैं। तो समझ में आया यहाँ पर स्टोरी, एनी डाउट? नो सर। ठीक है लवन्य, we will meet you in our next class. Next class is on Saturday at 4. Sunday Okay, we are taking class at 8. So we'll continue with नहीं, Sunday also 4. Sunday 4 na, then Saturday 8. Yes sir. Okay, Saturday we are meeting at 8 o'clock, Sunday at 4. So I hope you enjoyed the session. Yes sir. The class will be very live, interactive, and just like a story, easy. बस learn करना है, रट्टेबाजी कुछ नहीं, लर्न करना है। वी हैव टू लर्न केमिस्ट्री, लर्न ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, सब लर्न करना है, बस आराम आराम से चलता जाएगा। तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी सबको मिल जाती है, स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन वॉच देम एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो, नो इशू। तो नोट्स वगैरह चाहिए वो भी मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक कि बोर्ड के पेपर है, हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह करेंगे सॉल्व, जो भी पिछले साल सैंपल पेपर्स वगैरह, हम सब सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस आल्सो फॉर यू। ओके देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।